जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 7 श्लोक 19। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अनेक जन्म साधन करके उस पुण्य के बल से साधक सद्गुरु प्राप्त करता है। उसी समय सद्गुरु की कृपा से उषा काल हो जाता है। ज्ञान सूर्य की किरणें आकर उस पर पड़ने लगती हैं और तब उसकी दृष्टि के सामने भेदभाव रहित एकत्व की संपत्ति प्रकट होती है। ऐसी अवस्था में वह जिस जिस दिशा में देखता है उस दिशा में उसे केवल मैं ही दिखाई पड़ता हूँ, और यदि वह कुछ भी न देखे और बिल्कुल निश्चेष्ट तथा शांत रहे तो भी उसके हृदय में केवल मैं ही भासता हूँ। मेरे सिवा उसके लिए कहीं और कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार पानी में डूबे हुए बर्तन के अंदर और बाहर सब जगह पानी ही पानी रहता है, उसी प्रकार वह भी मुझ में निमग्न रहता है और उसके अंदर और बाहर भी केवल मैं ही रहता हूँ। इस प्रकार सर्वात्म दृष्टि द्वारा साधक दुर्लभ परमात्मा को जान लेने पर वह महात्मा हो जाता है, अर्थात तब यह अनुभव करता है कि उसका आत्मा ही विश्वव्यापी है। परंतु इस प्रकार की अवस्था की प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ है। हजारों सिद्ध साधकों में कहीं कोई एक इस अवस्था को प्राप्त होता है। ऐसा अनुभव प्राप्त ज्ञानी भक्त जो कुछ करता है, सोचता है या देखता है वह ब्रह्म करता है, ऐसा जान पड़ता है। ऐसा महात्मा यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने कहा है, महत् संस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। प्रेम दर्शन 39। महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। At the end of many births, the wise man, ज्ञानी भक्त, comes to me, realizing that all this is Vasudeva, the innermost self. Such a great soul, Mahatman, is very hard to find. The aspirant sadhak gradually evolves through yogic practices, selfless service, devotion, and constant meditation in many births, and ultimately gets into contact with a Sadguru. The knowledge of the self starts dawning on him. He realizes that his own self is all-pervading. All is Vasudeva, his Atman. It is very difficult to find such a great soul who has attained perfection. No one is equal to him. Beholding diversity is born of delusion. Beholding unity is born of enlightenment. Sri Ramakrishna. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അദ്ധ്യായം 7 ശ്ലോകം 19. എല്ലാം വാസുദേവനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാന ജന്മത്തിൽ യഥാർത്ഥ അറിവ് നേടുന്നവൻ അത്യന്തം അപൂർവനാണ്. നിരവധി ജന്മങ്ങളുടെ പുണ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ഒരു സാധകൻ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ പ്രാപിക്കുന്നു. ആ നിമിഷം തന്നെ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയാൽ പ്രഭാതം ഉദിക്കുന്നു. ജ്ഞാനസൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ അവൻ്റെ മേൽ പതിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഏകത്വത്തിൻ്റെ ധനം വ്യത്യാസമില്ലാതെ
അവൻ്റെ ദർശനത്തിന് മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുന്നു. അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിൽ അവൻ ഏത് ദിശയിലേക്ക് നോക്കിയാലും എന്നെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അവൻ ഒന്നും കാണാതെ പൂർണ്ണമായും ചലനരഹിതനും ശാന്തനുമായി തുടരുന്നുവെങ്കിലും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവന് നിലവിലുണ്ടാവില്ല. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ ഒരു പാത്രത്തിനകത്തും പുറത്തും എല്ലായിടത്തും വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പോലെ അവൻ എന്നിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അവൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും ഞാൻ മാത്രം വസിക്കുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു സാധകൻ സാർവത്രികമായ ആത്മാവിൻ്റെ ദർശനത്തിലൂടെ അപൂർവമായ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ അവനൊരു മഹാത്മാവായി മാറുന്നു. അതായത് അവൻ്റെ ആത്മാവ് സാർവത്രികമായ ആത്മാവാണെന്ന് അവൻ അനുഭവിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അത്തരമൊരു അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് പ്രാപ്തരായ അന്വേഷകരിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. അത്തരം അനുഭവ പരിചയമുള്ള ഒരു അറിവുള്ള ഭക്തൻ എന്തു ചെയ്താലും ചിന്തിച്ചാലും കണ്ടാലും അത് സൃഷ്ടാവ് ചെയ്യുന്നതായി തോന്നുന്നു. അത്തരമൊരു മഹാത്മാവിനെ നേടിയാൽ അത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായി കണക്കാക്കണം. ദേവഋഷി നാരദൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: മഹാത്മാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ അപൂർവവും അപ്രാപ്യവും തെറ്റുപറ്റാത്തതുമാണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్, జై పదిశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ బాల్య మహారాజు వారి ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయము 7 జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము శ్లోకం 19. బహూనాం జన్మ నామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభ. ఎన్నో జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత చివరి జన్మలో తత్వజ్ఞానాన్ని పొందిన పురుషుడు సమస్తము వాసుదేవుడే అని నన్ను పూజిస్తాడు. అటువంటి మహాత్ముడు అత్యంత దుర్లభుడు. అనేక జన్మల్లో సాధన చేసి ఆ పుణ్యబలముతో సాధకుడు సద్గురుని పొందుతాడు. ఆ సమయంలో సద్గురుని కృపతో అతనికి ఉషోదయం అవుతుంది. జ్ఞానసూర్యుని కిరణాలు వచ్చి అతనిపై పడడం ప్రారంభిస్తాయి. అప్పుడు అతని దృష్టి ముందు భేదభావరహిత ఏకత్వం అను సంపత్తి ప్రకటితమవుతుంది. అటువంటి స్థితిలో అతడు ఏ ఏ దిశలను చూచునో ఆయా దిశల్లో అతనికి కేవలం నేనే కనిపిస్తాను. ఒకవేళ అతడు ఏది చూడకపోయినా పూర్తిగా నిశ్చేషుడై శాంతుడై ఉన్నా కూడా అతని హృదయంలో కేవలం నేనే ప్రకాశిస్తూ ఉంటాను. నేను తప్ప అతనికి ఎక్కడా ఏది కూడా ఉండదు. నీటిలో మునిగిన పాత్ర లోపల బయట అన్ని చోట్ల నీరే ఏ విధంగా ఉంటుందో అదే ప్రకారంగా అతడు కూడా నాలో నిమగ్నమై ఉంటాడు. అతను లోపల బయట కేవలం నేను మాత్రమే ఉంటాను. ఈ ప్రకారంగా సర్వాత్మ దృష్టి ద్వారా సాధన చేసి దుర్లభుడైన పరమాత్మను తెలుసుకున్న తర్వాత అతడు పరమాత్మే అయిపోతాడు. అనగా అప్పుడు అతడు తన ఆత్మ విశ్వవ్యాప్తి అనే అనుభవం పొందుతాడు. అయితే ఈ విధమైన స్థితిని పొందుట చాలా దుర్లభము. వేలాది సిద్ధ సాధకుల్లో ఎక్కడో ఎవరో ఒకడు ఈ స్థితిని పొందుతారు. అటువంటి అనుభవం పొందిన జ్ఞాని భక్తుడు ఏది చేసినా ఆలోచించినా ఏది చూసినా అది బ్రహ్మే చేస్తున్నాడు అని తెలియబడుతుంది. అటువంటి మహాత్ముడు ఒకవేళ ఎవరికైనా లభించినట్టయితే అతని గొప్ప అదృష్టమని అనుకోవాలి. మహాసత్గస్తు దుర్లభో గమ్యో మోగశ్చ. మహాపురుషుల సాంగత్యము దుర్లభమైనది, అది అగమ్యము మరియు అమోఘమైనది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పరశురాम. जय गुरुदेव, जय पदशरण. अनेक जन्मानंतर ज्याला गेल्या जन्मात खरे ज्ञान मिळते आणि जो सर्व काही वासुदेव आहे या श्रद्धेने माझी उपासना करतो तो अत्यंत दुर्मिळ आहे. अनेक जन्मांच्या आध्यात्मिक साधनेच्या सद्गुणाच्या शक्तीने साधकाला खरा गुरु मिळतो. त्याच क्षणी खऱ्या गुरुच्या कृपेने पहाट होते आणि ज्ञानाची सूर्याची किरणे त्याच्यावर पडतात आणि नंतर त्याच्या दृष्टीसमोर भेदभाव न करता एकतेची संपत्ती प्रकट होते. अशा स्थितीत तो कोणत्याही दिशेने पाहतो तो फक्त मलाच बघतो. जरी त्याला काहीही दिसत नसले तरी तो पूर्णपणे गतिहीन आणि शांत राहिला तरी त्याच्या हृदयात
फक्त मीच प्रकट होतो. माझ्याशिवाय त्याच्यासाठी काहीही अस्तित्वात नाही. ज्याप्रमाणे पाण्यात बुडालेल्या भांड्यात आत आणि बाहेर सर्वत्र पाणी असते, त्याचप्रमाणे ते देखील माझ्यामध्ये बुडलेले असतात आणि मीच त्याच्या आत आणि बाहेर राहतो. अशा प्रकारे जेव्हा साधक विश्व आत्म्याच्या दर्शनामुळे दुर्मिळ परमात्म्याचा साक्षात्कार करतो, तेव्हा तो महात्मा बनतो. म्हणजेच त्याला अनुभव येतो की त्याचा आत्माच विश्व आहे. परंतु अशी अवस्था प्राप्त होणे अत्यंत दुर्मिळ आहे. हजारो सिद्धिप्राप्त साधकांपैकी फक्त एकालाच ही अवस्था प्राप्त होते. असा अनुभव असलेला ज्ञानी भक्त जे काही करतो, विचार करतो किंवा पाहतो, तो ब्रह्मदेव करत असल्याचेच दिसते. जर कोणी असा महात्मा प्राप्त केला तर त्याचे फार मोठे भाग्य मानले पाहिजे. देवर्षी नारद म्हणाले आहेत, महात्मा दुर्लभो गम्यो मोघश्च. प्रेमदर्शन अध्याय 39. महापुरुषांचा सर्वास दुर्मिळ, दुर्गम आणि अचूक असतो. अनेक जन्मांच्या शेवटी ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी भक्त माझ्याकडे येतो. त्याला जाणीव होते की हे सर्व वासुदेव, सर्व अंतरंग तो स्वतःच आहे. असा महान आत्मा शोधणे खूप कठीण आहे. साधक हळूहळू योगिक साधना, निस्वार्थ सेवा, भक्ती आणि सतत ज्ञान यातून अनेक जन्मामध्ये विकसित होतो आणि शेवटी सद्गुरूंच्या संपर्कात येतो. स्वतःचे ज्ञान त्याच्यावर उमटू लागते. त्याला जाणवते की त्याचा आत्मा सर्वव्यापी आहे. सर्वच वासुदेव त्याचा आत्मा आहे. परिपूर्ण प्राप्त केलेला असा महान आत्मा शोधणे खूप कठीण आहे. त्याच्या बरोबरीचा कोणीही नाही. विविधता पाहणे याच्यामुळे भ्रम जन्माला येतो आणि ऐक्य पाहिल्याने ज्ञान जन्माला येतो. श्रीरामकृष्ण. जय गुरुदेव. जय पदशरण. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. कैक जन्म के बाद अंतिम जन्म में जखन पुरुष तत्व ज्ञान प्राप्त करैत अछि तखन ओ सब किछु वासुदेवे छथि ई बुझि कऽ हमरा भऽ जाइत अछि. एहन महात्मा अत्यंत दुर्लभ होइत छथि. अनेक जन्म के साधना के बाद पुण्य के बल सँ साधक के सद्गुरु प्राप्त होइत छथि. ओहि काल में सद्गुरु कृपा सँ भोर भऽ जाइत अछि. ज्ञान सूर्य के किरण आबि कऽ ओकरा पर पड़ऽ लगैत अछि आ तखन ओकरा सोझा में भेदभाव रहित एकत्व के संपत्ति प्रकट भऽ जाइत अछि. एहन अवस्था में ओ जतऽ तकैत अछि सब दिस ओकरा केवल हमही दिखाई पड़ैत छी. आ जँ किछु नहि देखैत अछि आ पूर्ण रूपे निश्चेष्ट आ शांत रहैत अछि तखनो ओकर हृदय में केवल हमही प्रकट रहैत छी. हमरा सँ फराक ओकरा लेल कतहु किछु नहि रहैत अछि. जेना पानि में डूमल बासन के भीतर आ बाहर सब ठाम पानिए पानि रहैत अछि, ओहिना ओ साधक सेहो हमरा में मग्न रहैत अछि. ओकर भीतर आ बाहर केवल हमही रहैत छी. एहि प्रकार सर्वात्म दृष्टि सँ साधक जखन दुर्लभ परमात्मा के चिन्ह लैत अछि तखन ओ महात्मा भऽ जाइत अछि. माने तखन ओकरा अनुभव होइत अछि जे ओकर आत्मा विश्वव्यापी अछि. मुदा एहन अवस्था प्राप्त केनाइ अत्यंत दुर्लभ अछि. हजारों सिद्ध साधक सब में कियो एक्के एहि अवस्था पर पहुँचैत अछि. एहन अनुभव प्राप्त ज्ञानी भक्त जे किछु करैत अछि, सोचैत अछि वा देखैत अछि से मानू जे ब्रह्मे करैत छथि, एहन प्रतीत होइत अछि. एहन महात्मा जो ककरो प्राप्त भऽ जाय तऽ एकरा बड़ भाग के गप बुझबाक चाही. देवर्षि नारद कहैत छथि, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च. माने महापुरुष सबके संगति दुर्लभ, अगम्य आ अमोघ होइत अछि. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत
यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।